Hello, hi, how are you student? I hope you have watched my previous video of the chapter 4. So the concept of letter number is very clear to you. And if you like my video, please subscribe my channel if you have not done yet. And also give your valuable comments so I can improve myself and I can give my best to explain the topic. And I mostly use Hindi so you can better understand. Today I will explain standard 7, our chapter 4. Second important topic, simplification of algebraic expression. What is algebraic expression? That we have already studied, and how we can form the expression, that is also clear. So now if we are given algebraic expression, how we can simplify them, that is the topic. So here we are given 3-4 example that we have to study. Okay, earlier we found expression to find perimeter of different regular figures in terms of their side. ओके हमने जो फर्स्ट फिगर इट आउट किया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वी हैव टू राइट एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फिगर मीन्स रेगुलर ट्राइंगल पेंटागन एंड हेक्सागन दैट वी हैव डन. So now we have to write expression to find the perimeter of this rectangle. We are given the rectangle. So in rectangle there are length and breadth. This is the length and this is known as breadth. So now perimeter means boundary. We have to add all these sides to find the perimeter of this rectangle. So let's go. Find the sum of length, breadth plus length and breadth. So we can write perimeter for P for perimeter, length प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ. यहाँ पे जो था लेंथ प्लस ब्रीथ हमने 4 साइड्स को ऐड कर दिया है और ये इसका एक्सप्रेशन है. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. For that we can use swapping. Swapping means we can swap the terms, so we can take L plus L and B plus B. Now we can simplify further. L plus L is equal to 2L, B plus B is equal to 2B. So now we have a expression P is equal to twice L plus twice B. Now we can replace L and B with the number. We are given any rectangle, so for L and B we can replace with that number. Suppose we are given length is equal to 3 and B is equal to 4. So we can find the perimeter of the triangle. Twice L plus twice B is equal to 2. Replace L by 3 and B by 4. So twice 2 multiply 3 plus 2 multiply 4 is equal to 14. So this is our final expression, and our initial expression was L plus B, and we simplify then, and last we get twice L plus twice B. We can further simplify that. We can take common 2 and in the bracket we can write L plus B. The formula that we use for finding perimeter is equal to twice L plus B. Okay. Now example 5. Here is a table showing the number of pencil and eraser sold in a shop. The price per pencil is C and the price per eraser is D. So find the total money earned by the shopkeeper during this day. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है. डे 1, डे 2 और डे 3, 3 दिन का हमें दिया गया है. पेंसिल जो है उसका प्राइस C है और जो इरेज़र है उसकी प्राइस D है. अब हमें यहाँ दिया गया है कि कितनी पेंसिल सोल्ड हो रही है. डे 1 में 5, डे 2 में 3 और डे 3 में 10, और इरेज़र डे 1 में 4, 6 और 1. तो इसके अकॉर्डिंग हमें उसका जो टोटल मनी अर्न हो रहा है वो हमें एक्सप्रेशन उसका लिखना है. एक्सप्रेशन ही लिख पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट गिवन एग्जैक्ट प्राइस, वी आर गिवन ओनली सी. सी इज़ द प्राइस पर पेंसिल एंड डी इज़ द प्राइस पर इरेज़र. सो फर्स्ट फाइंड द मनी अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल. पहले हमें पेंसिल का फाइंड आउट करना है. सो मनी अर्न बाय सेलिंग पेंसिल ऑन फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे कितनी पेंसिल सेल हुई है 5 और उसकी प्राइस कितनी है C. सो 5 मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू 5 सेल. सो सेकेंड डे देर आर 3 पेंसिल, सो वी कैन राइट 3C. and the day 3 there are 10 pencils sold, so we can write 10C. 10C is the total money by selling 10 pencil. ओके. नाउ द टोटल मनी अर्न बाय द सेल ऑफ पेंसिल. तो तीनों दिन का आप टोटल करेंगे तो फर्स्ट डे का 5C, सेकेंड डे 3C और थर्ड डे 10C. सो कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन? यस. सेम एज जैसे हमने यहाँ L प्लस L को सिंप्लीफाई किया था वैसे ही हमारे पास अब 5C है, 3C, 10C तीनों है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिया है 5C
ये एक टर्म 3C 10C। तो ये तीनों में से हम क्या करते हैं, C जो है कॉमन निकाल देते हैं, C को साइड पे रख दिया, 5 + 3 + 10 को आगे रख दिया। जब भी हम लेटर नंबर टर्म्स लिखते हैं जिसमें लेटर नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, प्रोडक्ट हो, तो हमें पहले नंबर लिखना है, आगे नंबर लिखना है, बाद में वेरिएबल लिखना है। मीन्स इस तरीके से, आगे C नहीं लिखना है। सो नाउ 5 + 3 + 10 = 18। सो द final expression is 18C for the total money earned by pencil selling pencil in 3 days. Okay. Now if C is ₹50, C means cost of pencil, cost of each pencil is 50, then find the total amount earned by the sale of pencil. So यहाँ पे टोटल 18 पेंसिल सेल्स हुई है, 18 इंटू C, तो C की जगह हमें क्या लिखना है, 18 इंटू 50. So 18 5 are 90. You can add 0, so ₹900. Okay, so the money earned by total sale of pencil is 900 if price per pencil is ₹50. Now second, write the expression for the total money earned by selling eraser and then simplify the expression. तो सेम जैसे हमने पेंसिल का लिखा था वैसे ही सेम यहाँ लिख सकते हैं. इरेजर फर्स्ट डे है 4, सेकेंड डे 6 और थर्ड डे 1. सो वी कैन राइट, यहाँ पे लिखना है हमें, राइट एक्सप्रेशन टोटल मनी अर्न बाय द सेलिंग. फर्स्ट डे 4D प्राइस है D, सेकेंड में है 6D, थर्ड में है 1D. सो टोटल हो गया 6 + 4 + 11, so 11D. So expression for the total money earned by the selling eraser is 11D. It is the simplified form and this is the initial expression. Now the expression for the total money earned by selling pencil and eraser during this 3 days is 18C plus 11D. Okay, now total money that we get by selling pencil and eraser is 18C for pencil and 11D for eraser. Okay, now can the expression 18C plus 11D be simplified further? अब ये जो हमने सिंपली, पहले हमारे पास ये फॉर्म था, उसको सिंप्लीफाई करके ये किया, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये सिंगल टर्म लाया. तो अब क्या हमारे पास जो टर्म है 18C plus 11D, उसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 11C और 11D दोनों जो टर्म है उसमें वेरिएबल अलग अलग है. तो वेरिएबल अलग अलग है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते. और अगर ये वेरी इजी है, अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आया तो मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ हमारे घर का. हमारी मम्मी जब घर में ग्रॉसरी शॉपिंग करती है मंथ का, अगर मान लो कि मम्मी ने ख़रीदा है, शुगर है, टी, राइस, दाल, तो ख़रीद के जब लाते हैं मॉल से, ख़रीद के ले राइस के 3 पैकेट से और उसको स्टोर करना है, तो मम्मी क्या करेगी, एक ही टिन में सारा तीनों पैकेट खोल के स्टोर कर देगी. शुगर, चीनी सब अलग अलग डब्बे में करेगी. शुगर और चीनी एक डब्बे में कभी आपकी मम्मी स्टोर करती है? नहीं. शुगर और चीनी एक साथ नहीं स्टोर हो सकते. तो सेम ऐसे ही ये C अलग वेरिएबल है, D अलग वेरिएबल है, तो हम उसको मिक्स नहीं कर सकते. इसका जो सिंप्लीफाई वर्जन है वो 11C plus 11D ही रहेगा. ओके, नाउ देर इज़ नो वे ऑफ फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन एज इट कंटेन्स डिफरेंट लेटर नंबर्स and it is the simplest form. In this problem we saw the expression 5C plus 10, 3C plus 10C getting simplified to the expression 18C because they have same variable C. So we have add all the term and we get final term 18C. Check that both expression take the same value when C is replaced by different नंबर. अब ये जो हमारे पास बोथ एक्सप्रेशन था, बोथ एक्सप्रेशन मीन्स 18C, और जो इनिशियल एक्सप्रेशन था, इनिशियल एक्सप्रेशन कौन सा था, 5C plus 3C plus 10C. तो हमें क्या बोला गया है कि बोथ एक्सप्रेशन है उसमें C का डिफरेंट वैल्यू लेके हमें चेक करना है कि आंसर सेम आ रहा है. तो चलो यहाँ पे हम C का एक वैल्यू ले लेते हैं, हम 5 ले लेते हैं. ओके, तो C का वैल्यू 5 लेंगे तो 18 5 90, ये तो हमारा आंसर हो गया 90. अब इसमें हम ये तीनों है 5C, तो 5 × 5, फिर है 3 × 5, फिर 10 × 5. 5 5 are 25, 3 5 are 35, 10 5 are 50. 35 plus 25 हो गया 60, 30 40 50 60, और ये एक मिनट मिस्टेक हो रहा है, 10C 3C और 5C. सो 18 5 are 90, 50. ओके, 3 5 are 15 है, यहाँ पे मिस्टेक है. 3 5 are 15, 5 5 are 25, 25 plus 15 is equal to 40 plus 50 is equal to 90. सो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है.
सो अगर हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे या विदाउट सिंप्लीफाई, लेकिन अगर हम वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे कोई भी नंबर से तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ओके, यहाँ पे हमने ये जो 5c 3c 10c को प्लस कर दिया क्योंकि सेम वेरिएबल था। तो ऐसी टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल है उसे लाइक टर्म्स कहते हैं। और यहाँ पे जो ये दो टर्म है 18c प्लस 11d, दोनों टर्म्स में वेरिएबल डिफरेंट है तो इसको कहते हैं अनलाइक टर्म्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल 6, a big rectangle is split into two smaller rectangle as shown. Write an expression describe the area of bigger rectangle. Now first we must know what is the formula for finding the area. तो area means area का formula क्या है, rectangle का length multiply breadth. Okay, now this is the rectangle, big rectangle. We have to split into. This one is bigger, it has length with fourth और यहाँ 3 यूनिट ले ले, 4 यूनिट 3 यूनिट एंड ब्रीथ आर द सेम v. another way of seeing the distributive property. Okay, this example through they are giving us idea of distributive property. वो हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में कर ली है, तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. the area of smaller rectangle are 4v units and 3 square units. The area of the smaller rectangles are 4v square unit and 3v square unit. Yes, both are the smaller. This whole rectangle is bigger one. Okay, so area of this rectangle is 4v and this rectangle is 3v square. So the area of the bigger rectangle can be found in 2v. अब हमें अगर ये बड़े rectangle का area फाउंड करना है तो इसके टू मेथड से. फर्स्ट बाय डायरेक्टली यूजिंग इट साइड लेंथ विथ एंड 4.3. हम डायरेक्टली इसको 4+3 ले लेते हैं और इसको v. तो अभी जो बड़े रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4+3 7 और v. तो ये हो गया बड़े रेक्टेंगल का फॉर्मूला. तो एक तो इस तरीके से ढूंढ सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग द एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स. तो इसका क्या था, 4v था एरिया और इसका 3v था. तो अब बड़े रेक्टेंगल को फाइंड करना है तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4v + 3v. सो अगेन वी गेट द सेम आंसर 7v. सो फर्स्ट वे गिव्स 7v and the second way gives 4v + 3v is also 7v. We know that they are equal and this is the required expression for the area of the bigger rectangle. अब bigger rectangle का एरिया का एक्सप्रेशन लिखना है तो हम इसको 4v + 3v ऐसे भी लिख सकते हैं. As earlier a big rectangle is split into two smaller rectangle as shown below. Write an expression to find the area of. Okay, now we are given another rectangle and it is splitted. Okay, this is the rectangle ABCD. It is a big rectangle. This rectangle have two parts, AEFD and EBCF. We can take EBCF also. Okay, same like first example. Even in this case the area of AEFD, we have to find the area of AEFD. Okay, this one can be found in two ways. पहले हमें बड़े सर्कल का ढूंढना था, अभी हमें एक इसका ढूंढना है क्योंकि हमें इसकी लेंथ प्रॉपरली नहीं दी है. हमें ये वाली लेंथ दी है 12 और छोटे सर्कल की दी है 4. तो हमें ढूंढना है एरिया ऑफ दिस पार्ट बिग रेक्टेंगल. सो अब ये भी ये एरिया ढूंढने के भी हमारे पास कितने 2 वेज है. एक तो हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं. डायरेक्टली कैसे, तो यहाँ जो टोटल लेंथ है 12 उसमें से ये -4 कर देंगे तो ये इतना लेंथ हमें मिल जाएगा. 12 - 4 = 8 और यहाँ पे ब्रीथ तो है n. सो अभी एरिया क्या हो जाएगा इसका 8 × n, 8n यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा. और दूसरा मेथड क्या है, हम इसको दोनों मतलब इसमें प्लस नहीं करना है पर पहले बड़े का ढूंढेंगे और उसमें से ये छोटा वाला माइनस करेंगे. तो पहले बड़े रेक्टेंगल का एरिया करते हैं. तो बड़े रेक्टेंगल का मतलब ABCD का एरिया होगा 12 × n. एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल ABCD का लिख देते हैं. चलो ABCD का 12n. अभी और इसमें से ये छोटा वाला हम माइनस करते हैं. ए है EBCF. तो इसका लेंथ है 4n तो ये हो गया 4n. तो अभी हमें ये जो फाइंड आउट करना है कि इसका AEFD का फाइंड करना है. AEFD तो ABCD - EBCF. तो ABCD का है 12n तो इसका है
4n। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 12n माइनस 4n, सो हो गया 8n। अगेन आंसर इज द सेम, 8n 8n। सो नाउ सेट ऑफ टर्म, यहाँ पे हमें जो सेट ऑफ टर्म्स, अच्छा ये फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं जो हमने इरेजर वाले में किया, 5c 10c 12n 4n दैट इन्वॉल्व्स द सेम लेटर नंबर। यहाँ पे हमें जो टर्म्स दी गई है इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, तो ये टर्म्स में क्या कॉमन है, इन तीनों में वेरिएबल c कॉमन है और इसमें वेरिएबल n कॉमन है। सो दैट इन्वॉल्व्स द सेम लेटर नंबर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया, जो टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम है उसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स। एंड सेट ऑफ टर्म्स सच एज 18c 11d आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स एज दे हैव डिफरेंट लेटर नंबर्स और वेरिएबल. So as we have seen, like terms can be added together and simplified into a single term, while unlike term cannot be added or subtracted. So thank you for today. In next video I will explain example 7 and 8. So if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.